Okay. So kind of variable, and this is your square bracket, Yes, sir. and this is your curly bracket, and this is your syntax. Okay. Okay. So you have to put the semicolon after the curly bracket. So Okay. this is variable. Okay, so this is variable, and we are storing multiple data. One, two, Data. three, four, five. So this is the Okay. integer type of data, na? We are storing in the Okay. arrays. Okay. Okay, sir. So what it is an integer type. So we have to define the int data type, na? Okay, sir. Okay. So this is Mm. your data type, and this is your Yes. variable. Okay, this is Yes, your sir. variable, and this is your like basically you can say it is a as a buffer basically, na? How much you can how much data you can put it into the single variable, and you can define the size of array. Okay. Okay. So once you will define the size 5 or size 6, तो फिर उतने Mm. ही एलिमेंट यू कैन स्टोर इन द एरेज. ओके, Okay, उतना sir. ही डेटा. तो साइज इंपॉर्टेंट है डिफाइन करना. ठीक है. सो लाइक सिंटैक्स वी कैन टॉक अबाउट सिंटैक्स डेटा टाइप वेरिएबल साइज. ओके, Mm. curly bracket. Okay. Any doubt in this? No, sir. Okay. So let's try to solve some questions on arrays, which are Okay, important sir. from the interview point of view. Okay, Okay. mostly logics are asked in the interviews of TCS, on the in Tata's interview, NXP interviews. They ask Mirafra, they have also asked those kind of logics. Okay, so let's start some questions on the arrays. Okay, so first of all, we will include the standard input output Library. library has include file. Dot h file we will include. We will add in the program at the top of the program. Got it? Okay, sir. Yes, sir. And this is your entry point. Na? From where Entry execution of point. your program will start. Yes. So we will define some variables like a, b, Yes, sir. sum. Okay. Mm. A equal to 7 and b equal to 8. Got it? Yes, sir. And sum equal to a plus B. b. Okay. So how will you print the Mm. sum? So this To is not print the it. see. This is not the example of array. This is the normal question, normal Yes, program normal question. in Yes, which yes. we are finding the sum of two numbers. Okay. So Okay. printf is a inbuilt function in C libraries. Okay. So we will use percentage d, and what we Comma. will Sum. write here Sum. sum. So, Sum. yes. So this what we want to see. We want to see the output of this variable. Yes, sir. And in the last, the program will end with return 0. Return 0. Okay. Semicolon. Okay. So here Lovely. we will Lovely. select the language. So here the sum is 15. Got it. So 1500. now Yes, sir. start with arrays. So array. Mm. पापा 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 हम्म, वॉइस हो गया नहीं अभी नहीं, अभी मैं काम कर रहा हूँ. थोड़ी देर काम कर लूँ फिर मैं आता हूँ. So int ar, and we can define the size. Let's say 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Yes, sir. And in this, I want you to print all the numbers like 1, 2, 3, 4, 5. Can we use loop here? Like how we can print all 5 numbers? So we will apply loop like okay for loop. Okay. Loop. Okay, so Okay. first of all, we will write down the syntax of for loop. Na? So this is the Okay. syntax of for loop. How we can Mm. write the for loop. Okay. So always remember about the syntax. Got it? Okay. Printf. So int I equal to 0 and I less than equal to 5. Okay, and I plus plus. ये समझ में नहीं आता मुझे आज तक. नहीं ऐसा कुछ नहीं है लाइक आई इक्वल टू जीरो मतलब मैं क्या कर रहा हूँ जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ. ठीक है. सो बेसिकली ओके. जब भी हम इंडेक्सिंग की बात करते हैं ना, सो इंडेक्सिंग में क्या होता है, अगर मैं इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, जीरो से स्टार्ट होती है. ठीक है. जीरो से. तो अगर मैं देखता हूँ इधर का इंडेक्सिंग तो जीरो पे क्या है, वन है. ठीक है. हम्म, और हम्म, और वन पे क्या है, टू है ना.
सो पता है ना इंडेक्सिंग क्या होती है? नहीं तो एक बार पढ़ना यस यस इंडेक्सिंग के सर, बारे में, ठीक है? सो अभी इंडेक्सिंग एंड मैं क्या नंबरिंग। चाहता हूँ ना कि मेरे को ना 5 नंबर प्रिंट कराने हैं, ठीक है? सो ओके, लूप चलेगा, सो इटरेशंस, बेसिकली आई फॉर द इटरेशंस। सो इटरेशन यस मींस सर, लाइक आई इक्वल टू 0, इधर हमने देखा कि इधर से आ रहा है, वो क्या ले रहा है? इंडेक्सिंग ले रहा है, ठीक है? ओके, और वो कितना आई लेस देन लूप कहाँ तक 5, चलेगा? 5 तक चलेगा, 5 5 से तक, कम तक चलेगा, 5 से कम तक, ठीक है? और ओके, हर 4 तक हर होगा, हर बार एक एक इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीमेंट ठीक होगा। है? एक का इंक्रीमेंट होगा, हर बार एक का इंक्रीमेंट ओके, होगा। ओके, समझ में आया? यस सर, सो अभी मेरे को क्या करना है, देखो आउटपुट कराना है। सो आई वांट यू टू प्रिंट ऑफ ऑल दी स्टोर्ड डेटा इन दिस एरेज। सो आउटपुट कंसोल पर आउटपुट लाने के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? प्रिंटर, प्रिंट है, सीधा सा है। अगर मेरे को कुछ भी देखना है इधर काली स्क्रीन पे, तो सीधा मैं प्रिंटफ डालूंगा उसमें, ठीक है? तो वो जो भी अंदर वेरिएबल के अंदर होगा ना, वो बाहर आ जाएगा निकल के, ठीक है? और यस वो सर, कहाँ पर दिखेगा? इधर काली स्क्रीन पे तुम्हें रिजल्ट दिखेगा, ठीक है? समझ में आया इतना? यस यस सर, सो प्रिंटफ का सिंटेक्स क्या होगा? दिस इज यस द सर, गॉट इट, ब्रैकेट के अंदर कॉमा सिंटेक्स ऑफ डाल दीजिए। प्रिंटफ, ठीक है? यस, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि सबसे पहले ना यू हैव टू राइट डाउन दी, व्हाट यू हैव टू राइट डाउन? सिंटेक्स। सो परसेंटेज सिंटेक्स, डी एंड यस ए सर, आर आर आई, ठीक है? ओके, सो नाउ यू आर एबल टू सी दिस ना, 1 2 3 4 5 ओके, एरे प्रिंट हो गया। अगर मैं चाहता हूँ अगर मैं बोलूँ कि यार इस पूरे नंबर को ना, पूरा डेटा को रिवर्स करना है, सो हाउ वुड यू रिवर्स द डेटा? ओके सर, ये समझ में सो नहीं आया। सो लेट्स डू रिवर्स द एरे, ओके? वी विल डू रिवर्स द ओके, एरे। So how will you do reverse the array? हाँ, so हम क्या करेंगे, फिर से रिवर्स करना है या नॉर्मल सारा डेटा प्रिंट कराना है, तो फॉर लूप का यूज होगा। लूपिंग कॉन्सेप्ट इज वेरी ओके, इंपॉर्टेंट, ठीक है? लूप ओके बहुत सर, इंपॉर्टेंट है। ओके, ओके सर, तो सो सो फिर से हम देख लिखेंगे यार फोर। सबसे पहले देखो यार, मैं क्या लिख रहा हूँ? सबसे पहले क्या लिख रहा हूँ? मैं सिंटेक्स लिख रहा हूँ, 4 4 ठीक है? सिंटेक्स, अब मैं क्या डालूंगा? अपना लॉजिक डालूंगा, ठीक है? सो ओके सर, हाँ, इंट आई इक्वल टू, अभी 5 तक जा रहा है ना, सो आई विल राइट डाउन यस सर, 1 माइनस, मतलब ओके, तो टोटल जो साइज है ना, उसमें से 1 माइनस करूंगा, एंड ओके देन सर, आई इक्वल 0 and I minus minus, ठीक है? So this is the condition, this is the logic for the reverse condition. रिवर्स कंडीशन, So again you want to see some output on the console, so you will, okay, write a यस सर, printf here also. तो रिवर्स, जब हम एरे को रिवर्स करेंगे ना, तो अगर हमें एक लॉजिक पता है कि वो एरे को कैसे नॉर्मल वे में प्रिंट कराना है, तो हम रिवर्स का उसका अपोजिट कर सकते हैं, ठीक है? हमें पता हो जाएगा इधर प्लस प्लस है, इधर माइनस माइनस है, ठीक है? अंडरस्टूड ना? थोड़ा बहुत तुम्हें याद यस रखना सर, पड़ेगा कि हाउ यू कैन डू हाँ दैट। सर, सो लेट्स सी कि लाइक वो रिवर्स हो रहा है कि नहीं। Okay, so here you are able to see na, it is getting reversed now. 1 2 3 4 5 and 5 4 3 2 and ओके, 1 में आया, so 1 here. Let's see now it's 1. Okay, एक ओके, कम क्या लिया करना पड़ा है, सर? इक्वल टू 0 लिया है हाँ ना, सर, पहले वो ओके, हाँ, था ना, समझ तो गया, हाँ, इक्वल टू लेस देन इक्वल कहना पड़ेगा, हाँ, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है? ओके, सो सही, आई वांट टू सी सेपरेट डेटा। अभी लाइक जो भी डेटा दिख रहा है ना, वो प्रॉपर नहीं है, मतलब लाइक हाँ सर, थोड़ा सा समझ पढ़ने में अटपटा लग रहा है, बट गया, आई वांट कि जो रिवर्स वाला है ना, वो नेक्स्ट लाइन में आए। तो कैसे करूंगा उसको? हाँ, और स्लैश एन लगा देंगे, कहाँ पे से लगाऊं? उसके आगे प्रिंट ऊपर वाले में, कहाँ पे? परसेंट दिखेगा, तो आई प्लस इधर प्लस के नीचे, आई प्लस इधर प्लस के नीचे, हाँ परसेंटेज सर, डी के साथ? हाँ, No, 1 minute, let's check it out. Okay, here I cannot use this. Okay, so where I need to here? स्लैश एन, No, it is not correct. हाँ, या ट्राई कर देते सर, 1 2 3 4 5. Okay, now 4 5 4 3 2 1. Got it. ये, हाँ, But I want to make it more bold. हाँ, So I will write here printf
So reverse the array. Got it? Hmm. So again, here is the mistake. Array. Okay. So here you are getting nice data. Okay. So arrangement of reverse array is good ना. So यहाँ ओके, पर लिखना क्या है पड़ेगा। ना, एक स्पेस आया है, वो कैसे आया है? How can I वो इस improve पे this? एन का इसको कम कर देंगे, बैक स्लैश। हाँ, ओके। ठीक है। So अभी it will print normal. ठीक है ना? यस सर। Okay. So let's take some other एक examples also. समझ में तो आया सर। एक्चुअली प्रिंट अपन ने यूज की क्या रिवर्स के लिए? अरे वो अगर प्रिंटफ नहीं यूज करूंगा ना तो फिर इधर कैसे दिखेगा, मतलब ये सारी चीजें ओके, कैसे कुछ लिखने दिखेंगी, के लिए तो ये क्या है अपन ना? कह रहे इसको प्रिंट कर रहे इसको प्रिंट। ओके। और अगर मैं इधर प्रिंटफ डाल दूंगा ना, सी अगर मैं क्या करता हूँ ना, इधर डालता हूँ, ठीक है, लेट्स कमेंट, हाँ, इसको मैंने क्या किया, कमेंट कर दिया। कमेंट सो कमेंट इट किया। इज कॉल्ड सिंगल लाइन कमेंट। ठीक है, सिंगल लाइन अभी क्या है, वो हमारा जो कंपाइलर है उस लाइन को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, हाँ, प्रिंट नहीं करेगा, ये गॉट इट। है ना? वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा, प्रिंट की बात अलग है, इट विल नॉट एग्जीक्यूट दैट लाइन। सो अभी मैं डाल के देखता हूँ, देखो कितनी बार आया ना, वो बार बार लूप के अंदर चला गया। अभी जो रिवर्स द array इज गोइंग टू द लूप राइट गॉट नाउ। इट। ओके, लूप सो में डालेंगे तो बार-बार दिक्कत होगी, तो लूप से आउट हाँ, जा तो रहा है। वो ठीक है। लूप में नहीं डालना चाहता मैं, ठीक है, सिर्फ डेटा को मैं लूप में लेना चाहता हूँ। ठीक है, अभी समझ में आया ना? यस यस, अच्छे से आया सर। सो एक ही प्रोग्राम के अंदर हम सारे एरे के लॉजिक्स कंप्लीट कर लेंगे मोस्टली। ठीक है, ओके सर। अभी मैं क्या चाहता हूँ कि सम करूँ मैं सारी वैल्यूज पे। ठीक है, सम ऑफ ऑल दी एरे एलिमेंट्स। सो अगेन वी विल राइट हियर सम सम ऑफ द एलिमेंट्स ना। ओके। Okay, so again we will also use for loop int I equal to 0, I less than equal to 5, I plus plus sum plus equal to, सम प्लस। और इधर सम क्या है, एक वेरिएबल लेंगे, पहले वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा, सब इक्वल टू 0 इनिशियलाइज कर देंगे इसको 0 से। ठीक है, सो दैट इट कुड नॉट टेक एनी काइंड ऑफ गार्बेज वैल्यू। ठीक है, सो अभी मैं क्या करूंगा ना, इसको प्रिंट कराऊंगा, प्रिंट है अभी सम के अंदर वो एक्चुअल, सो दिस इज द वेरिएबल है, और उसका जो अगर, और इधर क्या कर रहा हूँ, एरे है आई फॉर इटरेशन, जो पांच बार चलेगा ना आई, तो वो सारी वैल्यूज क्या करेंगी, प्लस करेगा, है ना? 1 को 2 से प्लस करेगा, 2 को, जब इन दोनों का पहले प्लस होगा, फिर जब इनका प्लस हो जाएगा, फिर उस प्लस को इधर करेगा। ठीक है, 3 के साथ, जब इन तीनों का प्लस हो जाएगा तो फिर उसको कहाँ करेगा, 4 को ऐड करेगा, जब 4 तक प्लस हो जाएगा फिर उसको इसमें 5 ऐड करेगा, तो ओके, तीनों सम का, प्लस। हाँ, तो तीनों का कितना ऐड करने पर कितना आ रहा है, 1 3 2 12 3 3 15 6 10 और 15। ओके, 15। understood? So how we can यस सर। take this? How we can see the sum? The percentage the sum. Okay. So it is saying like redeclarations. हमने डिक्लेयर किया है क्या सम को, पहले कहीं इधर हमने सम को डिक्लेरेशन किया है सम का। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे ना, बंद कर देता हूँ मैं, इसको भी बंद कर देता हूँ, वेरिएबल चेंज करना पड़ेगा ना, सेम वेरिएबल में एक यस वेरिएबल को दो जगह नहीं यूज कर सकते। ठीक है, ओके सर। तो नाउ यू आर सीइंग द रिजल्ट 15 में, और हियर इज ओके सम ओके स्पेस, हियर इज सम स्पेस। ठीक है, सो ओके सर, मुझे एक दिक्कत हो रही है। एक तो सर ये इंट सम 1 इक्वल टू 0 क्यों दिया सर? सम वन इक्वल टू 0 से, सम वन बेसिकली क्या है, एक वेरिएबल है ना। ठीक है, तो ओके अगर हमें सारी एलिमेंट्स का या जो भी एरेज के अंदर डेटा है उसका सम करना है, तो सम करने के बाद कुछ आउटपुट भी तो, रिजल्ट भी तो आएगा ना उसका। जैसे 15 आया, 15 आया, तो 15 को हम स्टोर कहाँ पे करेंगे, ओके। समझा ना? 15 को स्टोर कहाँ पे करेंगे, सम 1 इक्वल टू 0 का मतलब मैं बता रहा हूँ ना, पहले तो ये बताओ सम क्या है, सम इज द वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल। ठीक है, अगर और सारे एलिमेंट्स का सम करने के बाद क्या आएगा, 15 आएगा, तो 15 कहाँ स्टोर हो रहा है, आएगा सम सम 1 वन 1 में। वेरिएबल के अंदर स्टोर हो रहा है। ठीक है, ओके। और अगर मैं इसको, मैंने क्यों लिया है, अपनी सेफ साइड के लिए लिया है। ठीक है, सेफ साइड के लिए मैंने क्या किया है, इसको 0 से इनिशियलाइज कर दिया है, मतलब ठीक है, ओके अगर अगर इसके अंदर कुछ भी डेटा नहीं जा रहा है, मतलब रिजल्ट नहीं आ रहा है 15, ठीक है, तो क्या आएगा, तो क्या आएगा, उसके अंदर 0 है। ठीक है ना, वो वैल्यूज 0। माइनस में नहीं जाएगी, कोई गार्बेज वैल्यू नहीं आएगी, बाय ओके डिफॉल्ट 0 मैंने सेट कर दिया है। ठीक है, ओके अदरवाइज क्या होता है ना कि कई बार वो कंपाइलर ना गार्बेज वैल्यू थ्रो करते हैं, तो वो ठीक नहीं है। ओके। एक बार देख लेते हैं। ठीक है, देखते हैं गार्बेज वैल्यू दे रहा है ना। सो और सम 1 इक्वल टू 1 ले ले तो
सम 1 इक्वल टू 1। पहले तो देखो इधर सम 1 मतलब इधर गार्बेज वैल्यू आ रही है क्या 337? हाँ सर, आ ये गया तो सर। हमारा आ ही नहीं रहा ना, प्लस इट इज नॉट अ प्लस, इट इज नॉट द सम एक्चुअली ना। तो अब मैं क्या करूंगा, 1 ले रहे हो ना, ठीक है। सो लेट्स सी, एक एक ऐड हो गया उसमें जो ओके, कि ऐड हमारा हो जाएगा, समझ गया। हाँ एक्चुअली तो एक्चुअली इसको कुछ ना कुछ डालना पड़ेगा, उसमें ऐड होगा, तो अपन को अभी 15 देखो चाहिए तो सुनो सर ना, नीचे जैसे जीरो जीरो डाल डाला, देंगे। जीरो डाला तो जीरो का क्या है कि वो 15 रिजल्ट आएगा तो 15 का 15 ही रहेगा, है ना। गॉट इट। अगर मैं 2 डाल दे 3 डाल देता हूँ तो 3 क्या होगा, 15 तो आएगा रिजल्ट, प्लस उसमें 3 और ऐड हो हाँ, जाएगा, ऐड हो ठीक है। जाएगा। जी जी। तो इसको मैं क्या करूंगा, जीरो से इनिशियलाइज करूंगा, ठीक है, जिससे यस मेरा सर, जो गॉट इट। रिजल्ट है ना वो एग्जैक्ट एक्यूरेट आए। सो ओके अभी यू आर गेटिंग एक्यूरेट रिजल्ट, ओके, गॉट इट सर। ठीक है। नाउ वी फाइंड, लेट्स फाइंड द एवरेज, एवरेज ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, फाइंड द ओके, एवरेज। एवरेज ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, अरे ठीक है। सो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एवरेज सारे नंबर्स का एक एवरेज आएगा, ठीक है। एवरेज जो भी आएगा आएगा तो वो कहीं ना कहीं स्टोर भी तो होगा ना, तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना यस। पड़ेगा, वेरिएबल बनाने पड़ेगा। सो जी जी। एवरेज बेसिकली जनरली हम डेटा टाइप जो एवरेज के लिए लेंगे वो फ्लोट आएगा, ठीक है। ओके। क्योंकि जरूरी नहीं है एवरेज, एवरेज हमेशा ऐसा नहीं है कि इंटीजर है, वो फ्लोट भी आ सकता है। जैसे कि मान ले कि किसी भी चीज का सम कितना आ रहा है, कितना आ रहा है सम, 7.5 आएगा इसका, पाँच पर पाँच पाँच फ्लोट में आएगा। हाँ 5 7.5 आ रहा है ना, तो फ्लोट में आएगा सीधा। नहीं नहीं, एक मिनट सर, गलत बताया मैंने, एक सेकंड, कितने वर्ड है। नहीं नहीं, सम सम जीरो देखो, सम का क्या है, टोटल नंबर ऑफ, टोटल सम डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टोटल डिवाइड बाई साइज, टोटल नंबर। टोटल टोटल साइज, नंबर साइज है, नहीं टोटल नंबर, नंबर हाँ। फॉरगेट बेसिकली साइज, वी कैन डिवाइड दी सम बाई साइज ऑफ द एरे। सो सम कितना है, 15 है, 15 को 15। 3 से डिवाइड करेंगे ना, 15 को 5 से डिवाइड करेंगे। 5 से करेंगे 3 हाँ तो आएगा। एरे का साइज कितना है, 5 है ना, तो हम 5 से डिवाइड अच्छा करेंगे अच्छा, तो एक कितना है? दो तीन चार पाँच, एक ओके, एवरेज यदि अरे 5। भाई 3 ही आया, 3 ही आया। हाँ हाँ, एवरेज 3 आएगा, सही बोल रहे हो आप। टोटल नंबर इक्वल टू, नहीं, टोटल एवरेज, टोटल सम अपॉन डिवाइड बाय टोटल नंबर। हो गया, हो गया ना। ठीक है। सो बेसिकली लेट्स राइट डाउन हियर, नहीं सर, आप सही कर रहे हैं। एवरेज इक्वल टू फ्लोट, फ्लोट एक एंड मिनट सर, इसको ऊपर करोगे थोड़ा। दिख रही होगी ना अभी, नहीं, अभी होल्ड लग रहा है। ऐसे कैसे हो सकते हैं, ये आप दिख राइट रहा है क्लिक कर दो। क्या? नहीं, स्क्रीन तो दिख रही है, चल नहीं रही स्क्रीन। अरे रुको ना, अभी स्क्रीन दिख रही है क्या? हाँ हाँ, दिख रही है सर। हाँ तो मैं लिख रहा हूँ ना, वो लिख के दिखेगा। तो सम 1 डिवाइडेड बाई 5, अंडरस्टूड। प्रिंट एफ, ओके, आप देखिए। प्रिंट एफ एवरेज। अब फ्लोटिंग वैल्यू को उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है? इसका एवरेज का। नहीं नहीं, वो उसका फ्लोट का। सो जनरली परसेंटेज डी फॉर द इंटीजर एंड परसेंटेज एफ फॉर द फ्लोटिंग वैल्यू, सर। एंड वी विल टेक एवरेज। इधर हमने सीधा फॉर्मूला लिखा है, हम्म। सो दिस इज योर एवरेज, ओके। कोई डाउट? देखो सम, सम वन इधर से लिया ना हमने, सम वन टोटल सम तो इधर आ गया मेरा, हम्म। जो 15 आएगा वो कहाँ पर स्टोर हो रहा है, एज सम वन के अंदर स्टोर हो रहा है ना। और सम वन को यस मैं सर, क्या करूंगा, 5 से डिवाइड कर दूंगा, डिवाइड ठीक है। करूंगा। तो अब डिवाइड करूंगा तो डिवाइड करने के बाद कुछ वैल्यू तो आएगी ना, वो कहाँ पर स्टोर होगी, एवरेज वेरिएबल के अंदर स्टोर एवरेज होगी। जीरो में, हाँ। हाँ सो अब उसको प्रिंट, उसको देखने के लिए मैं क्या करूंगा, प्रिंट एफ का यूज करूंगा एंड फॉर्मेट स्पेसिफायर लिया एंड उस एवरेज को उसको मैं देख लूंगा कि हाँ कौन सा वेरिएबल है क्या है, ठीक है। इतना यस क्लियर? सर। यस सर। एंड नाउ, सो अभी हमने कौन कौन से लॉजिक सीखे, लेट्स डू सम अदर अदर लॉजिक आल्सो। स्क्वायर ऑफ ऑल द नंबर्स, स्क्वायर कैसे करेंगे, फॉर लूप अगेन वी विल यूज फॉर लूप, ओके। इनका इक्वल टू 0 आई लेस देन 5 आई प्लस प्लस, ठीक है ना। यस यस। एंड प्रिंट एफ परसेंटेज डी एरे, क्लियर इतना। यस सर। यहाँ पे सबका वो रहा है ना स्क्वायर, प्रिंट एफ अगेन वी विल आल्सो ऐड द प्रिंट एफ स्क्वायर ऑफ ऑल द एलिमेंट्स
क्या मिस्टेक क्या है? इधर आ गया ना रिजल्ट. So this logic was asked in Mirafra company interviews. Okay, and every logic was asked in the interviews. So I have taken all the important logics were asked in the interviews basically. These are very important logics. Got it? Okay. Yes. Any doubt right now? नहीं सर. Hmm. So I'm giving you two questions. Okay, first find the maximum. What sir? I'm giving you two Okay. questions. Find the maximum number and Okay. count even and odd. ठीक है? Okay sir. So इसको like you have to do this Okay these sir. two questions. ठीक है? जी जी. And in the next class we will see the pointers with arrays. Okay? ये tomorrow? क्या? कल होगी या फ्राइडे सैटरडे? array के मतलब वो देख सकते हैं हम pointers के साथ में. ठीक है? So pointer के साथ में like you can check it. 1 minute. सर मतलब फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल एलिमेंट राइट? हम्म. उसमें फोर लूप यूज नहीं किया हुआ है. क्या है? फाइंड द एवरेज ऑल एलिमेंट्स, उसमें अपन ने फोर लूप यूज नहीं किया. नहीं होगा ना, यूज तो नहीं होगा. देखो ना सर एक बार. एक मिनट. जी जी. उसमें भी यूज होगा. ये इतना लिखा हुआ नहीं है इसमें सब कुछ. फ्लोट एवरेज इक्वल टू 0 लिखा सीधा अपन ने. हम्म. तो अब एरे का एक आध बार रिवीजन किया है क्या, या पढ़ा है पहले से? नहीं सर, ये फर्स्ट टाइम पढ़ा तो समझ में आ गया. आ गया ना, बस ऐसे क्वेश्चंस एक्चुअली करने मैंने हैं. एक्चुअली देखा था तो समझ में नहीं आया था पहले. आई प्लस प्लस क्या है ये तो. वो इटरेशन वो लूप है बेसिकली. जी जी समझ. और ऑफिस कैसा गया आज? ठीक है सर. हम्म. बढ़िया है सर. So let's take some other array 1, range 5, okay, and 1, 2, 3, 4, 5. int pointer. Pointer के बारे में पता है क्या, तो pointer क्या है? जी सर, पॉइंटर नहीं पता सर ये थोड़ा. So pointer basically hold the address of another variable. ठीक है? Address, memory address of another variable. ओके. ठीक है? हम्म. And so again you will apply for loop int I equal to 0 and I less than equal to less than 5, I plus plus printf percentage d and okay. So let's see. Okay, so फिर से like you are able to see the values ना. So here you can add some printf. printf अभी क्या है ना, एक साथ आ रहा है पूरा. So अभी मैं चाहता हूँ कि वो सेपरेट हो जाए, नीचे की लाइन में आ जाए. So n, so
by using pointer. ठीक है, हम्म, सो यू कैन सी दिस पॉइंटर का यूज करके हमने क्या किया है, सारे एलिमेंट्स को एक्सेस किया है। ठीक है, ओके तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस एग्जांपल इज सो सुपर इंपॉर्टेंट। हालांकि ओके सर सारे लॉजिक्स आर इंपॉर्टेंट, मतलब लाइक फ्रॉम द इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू, और अगर आप इन सब का प्रैक्टिस करते हो ना, सो यू विल डेफिनेटली मास्टर द सी प्रोग्रामिंग। ठीक है, ओके तो एक पॉइंटर प्लस मीडियम लेवल का जो एरेज है ना वो खत्म हो चुके हैं अभी। ठीक है, ऐसे तो इसमें अभी 3D एरे 2D एरेज है, लेकिन इतना भी किया है ना, देन यू विल हैव गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ सी प्रोग्रामिंग कोडिंग एंड ऑल। ठीक है, जैसे मैंने इसमें सारे लॉजिक्स लिखे हैं ना, बहुत सारे लॉजिक्स लिखे हैं। सो सिमिलरली आप भी इस तरह से ना कुछ अपने दिमाग से लॉजिक क्रिएट कर सकते हो, सोच सकते हो कि कैसे कोड लिखना है। तो हर बार क्या करना है ना, प्रैक्टिस करनी है। मैंने बोला ना कि सी प्रोग्रामिंग इज ऑल अबाउट द प्रैक्टिसिंग, कि वो कैसे लिखना है ना। अभी अभी सम 1 इक्वल टू 0 है, तो ये तो सब प्रैक्टिस से ही आएगा ना, मैंने मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस की है इसकी। ठीक है ना, इतना क्लियर, कोई डाउट अभी? इस पीटीआर पॉइंटर प्रिंटफ पॉइंटर प्लस आई हम्म। ये समझ में नहीं आया। हाँ सी पॉइंटर मींस बेसिकली पॉइंटर क्या कर रहे हैं, जो स्टार है ना वो क्या कर रहे हैं, इस एरे को पॉइंट कर रहे हैं। ठीक है, मतलब क्या है, ओके दिस इज योर पॉइंटर। पहले तो पॉइंटर को समझो कि पॉइंटर क्या करेगा, हर जो हमारा एरे बन करके है ना, ARR1 इज अ वेरिएबल। ठीक है, एरे वेरिएबल है, तो ओके उसको उसको पॉइंट कर रहा है, उसका जो एड्रेस है ना उसको पॉइंट कर रहा है वो। ठीक है, तो ठीक अभी है हमने क्या किया है कि हम आई का तुम्हें समझ में आना चाहिए कि आई से आई क्या इटरेशन है, समझ में आया ना, इटरेशन इंडेक्सिंग के लिए यूज हो रहा है। तो अगर मैं पॉइंटर ठीक 1 लिखूंगा ना, पॉइंटर सिर्फ मैं पॉइंटर डालता हूँ। ठीक है, 1 मिनट के लिए ना आई को हटा देता हूँ। है अभी क्या है, 1 1 1 1 आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इधर क्या है ना, प्लस प्लस क्या हो रहा है, 0 हो रहा है इधर। ठीक है, समझ में आया ना, 0 1 1 1 1। सो दिस इज योर इंडेक्सिंग। अब मैं आई डाल दूंगा ना, तो आई क्या कर रहा है, आई हमारा 1 से लेके जीरो 5 तक क्या करेगा, पाँच रन तक करेगा वो। ठीक है, ओके पॉइंटर क्या करेगा, उस जो भी हमारा 1 2 3 है, एरे के जो एलिमेंट्स हैं, एरे के अंदर जो डेटा है ना, उसके उसको पॉइंट करेगा, है ना। और आई हमारा क्या करेगा, उसका इटरेशन करेगा। ओके समझ में आया ना, यस सर मतलब आई इक्वल टू 0, पहले 0 आएगा, 0 पे क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, बनाएगा फिर आई आई इक्वल टू 1 हो जाएगा, है ना, फिर क्या आ जाएगा, 2 प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह से आई इक्वल टू 2 आएगा तो 3 प्रिंट हो जाएगा, है ना। तो वो ओके इधर इटरेशन चलेगा, वो बार बार चलेगा, क्योंकि लूप में लिख रहे हैं ना उसको। एक बार लूप चलेगा, सी एक बार लूप ओके चलेगा सर तो हमारा 1 प्रिंट होगा, 2 बार लूप चलेगा तो हमारा कितना प्रिंट होगा, 2 प्रिंट होगा। तो टू ऐसे कितनी बार लूप चलेगा, 5 बार लूप चलेगा, तो पांचों वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगे ना। ओके सर गॉट इट गॉट इट, कोई डाउट अभी? यस सर नहीं सर ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ना प्रैक्टिस करना है जितना हो सके। ठीक है, जी सर बाकी एरे में मेरे को नहीं लगता कि अभी लाइक इससे ज्यादा कुछ अभी तुम पढ़ना है। ठीक है, अगर खुद खुद को अगर प्रैक्टिस करना है ना, सो यू कैन फाइंड आउट सम मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस